कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ श्रीवरधारी जय गोपीजन वल्लभ श्रीवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ श्रीवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Hari Nam Sankirtan Namo Sab ki Jai Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. So today we will be taking from Canto 1, Chapter 16, text 21 onwards. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayit Nasuprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuke 1:16-21 Arakshmanaha striyaurbibalan sochasto purushudhairvarthan vacham devim brahmakule kukarmanya abrahmane rajakule kulaghyana Arakshmanaha striyaurbibalan sochasyato purushudhairvarthan वाचम देवी ब्रह्मकुले कुकर्मण्य अब्रह्मणे राजकुले कुलध्यान आरक्षमाणाः स्त्रिय उर्विबालान् शोचश्यथो पुरुषोदयरिवार्तान् वाचम देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य अब्रह्मणे राजकुले कुलघ्नाम. व्हाट मीनिंग? आरक्षमाणाः आरक्षित स्त्रियः स्त्रियां उर्वी पृथ्वी पर बालान बच्चों को सोचसी आपको तरस आ रही है अथो इस तरह पुरुष आदौ आदमियों के द्वारा इव सदृश्य आर्तान दुखियारी वाचाम वाणी देवीम देवी को ब्रह्मकुले ब्राह्मण कुल में कुकर्मणि धर्म के विरुद्ध कार्य करता है अब्रह्मण्य आह्वान संस्कृति के विरोध लोग राजकुले प्रशासनिक वंश में कुल अज्ञान अधिकांश कुल ब्राह्मण. ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय. क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई है, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म के रथ ब्राह्मणों के हाथ में है, या यह आप देख कर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते हैं. तात्पर्य आप लोग मदद करें पढ़ने में. Yes. Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. In the age of Kali, the woman and the children, along with brahmanas and cows, will left unprotected. In this age, illicit connection with women will render many women and children uncared for. Circumstantially, the women try to become independent of the protection of men, and marriage will be. In most cases, the children will not be taken care of properly. The Brahmanas are traditionally intelligent men, and thus they will be able to pick up modern education to the topmost track. But as far as moral and religious principles are concerned, they shall be the most fallen. Education and bad character go ill together, but such things will run parallel. The administrative heads as a class will condemn the tenets of Vedic wisdom and will prefer to conduct a so-called secular state. And the so-called educated brahmanas will be purchased by such unscrupulous administrators. Even a philosopher and a writer of many books on religious principles may also accept an exalted post in the government which denies all the moral codes of the Shastras. The Brahmanas are specifically restricted from accepting such service. But in this age, they will not
only accept the service, but they will do so even if it is of the menace quality. These are some of the symptoms of Kali age, which are harmful to the general welfare of human society. Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वर्षमानुषुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपाशनिभ्यः वच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टापुत्रे स्मृति चितागतमनित नामने नमाचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायने गौरगदामदाय नगररामताणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठापुत्रे स्मृतिभक्तिवेदान्त स्वामिनित नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषण्यवादी भाषेदितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्रील प्रभुपाद। आरक्षयमाणा स्त्रियर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादेरी वार्तान् वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्मण्य अब्रह्मणे राजकुले कुलज्ञान। तो आज हम सुन रहे हैं शौनकादि ऋषि को बता रहे हैं कन्वर्जेशन बिटवीन मदर अर्थ एंड धर्म द बुल। तो धर्म आज कह रहे हैं, धरती माँ को कह रहे हैं, क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है? अभी कली शुरू हुआ नहीं है, ये जो है कली की सिम्टम्स बता रहे हैं, कली का प्रथम चरण है। तो बता रहे हैं कली में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी जाएंगी। लव एट फर्स्ट साइट and divorce at first sight, very prevalent nowadays. Love at first sight, divorce at the first sight. क्यों कि दोनों जो है अपोजिट सेक्स हैं, they want to enjoy the senses, and if they not gratify one another, fight takes place. तो पुरुष भी चरित्रहीन और स्त्रियां भी चरित्रहीन। अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म के रथ ब्राह्मणों के द्वारा हाथ में चली गई है। देखिए, एक होते ब्राह्मण, दूसरे होते ब्राह्मण बंधु, क्षत्रिय क्षत्रिय बंधु, वैश्य वैश्य बंधु और शूद्र शूद्र बंधु। बंधु यानी आपने उस कुल में जन्म लिया है, लेकिन आप कर्म के द्वारा नहीं है। हमारे जो 4 वर्ण और आश्रम है, ये कार्य बने रहते हैं, सीमेन वाली बात नहीं है। सो ब्रह्म बंधु ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, ब्राह्मण बंधु कहलाएगा। तो यहां वो कह रहे हैं कि ज्ञान उनके हाथों में चला गया, यानी जो अपने ज्ञान को बेचते हैं, ज्ञान को बेचते हैं। एक बार एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर मुंबई में भगवत गीता बेच रहा था, 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। तो एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी आया, बोला तुम धर्म को बेचते हो, तुमको शर्म नहीं आती? वेद व्यास ने कौन से पैसे लिए? उसने कहा हम धर्म को कहां बेचने साहब, ये धर्म फ्री है, ये तो सिर्फ जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, कुरुक्षेत्र से बम्बई तक आने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, किताब तो फ्री है, किताब के कोई पैसे नहीं। जितने श्लोक हैं हम 700 रुपये आपसे नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मांग रहे हैं। तो बहुत सारे लोग चाला हो जाते हैं, आप धर्म को कैसे बेच सकते हैं? लेकिन आज धर्म बिकता है। धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। आज का धर्म खूब बिकता है, इंडिया में खूब धर्म बिकता है। आजकल मंत्र बिकते हैं। हमें किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इस कली में क्या मंत्र होल्ड करते हैं, इस कली में क्या मंत्र होल्ड करते हैं?
आप प्रूव कर सकते? मैंने कहा हाँ, 1 मिनट में प्रूव कर सकता हूँ। बोलो कैसे? मैंने देखिए, जो मंत्रों के द्वारा जिनकी शादी होती है, पति पत्नी की शादी होती है, वो बेचारे उम्र भर जुड़े रहते हैं। ये मंत्रों की शक्ति है, उम्र भर जुड़े रहते हैं। बीवी खराब हो या आदमी खराब हो, चलेगा, मंत्र पढ़ दिए तो वैसे शुद्धि हो जाएगी, वो अलग नहीं हो सकते हैं। तो आज कली के जमाने भी मंत्रों में शक्ति है। अच्छा, ये शक्ति जो आप एक दूसरे को प्यार करते हैं वो क्यों नहीं होती? क्यों? मंत्र है ही नहीं। वहां तो सिर्फ लालसा है, सिर्फ वासना है, सिर्फ ध्येय है इंद्रिय तृप्ति का। इसलिए आज भी इस जमाने में मंत्र सिद्ध होते हैं। एक बार एक गुरु से शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरु जी, क्षमा चाहता हूं, एक चीज का उत्तर नहीं मिल रहा है। बोले क्या है? बोले देखो, आप क्या करते हो, प्रसाद बनाते हो और प्रसाद भगवान के सामने रख देते हो। अब मुझे मालूम है, तुमको मालूम वो नहीं खाता। अगर खाता तो प्लेट में जो है कुछ कम होता, नहीं खाता है तो ये दयानिश नहीं है, ये मन की धारणा नहीं है। गुरु ने जवाब नहीं दिया। गुरु ने कहा ठीक है बच्चे, आपको समझाएंगे हम। तो 2 3 4 दिन गुजर गए तो उन्होंने सब शिष्यों को बोले, वे साथ में था, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम सबके सब जो है भगवत गीता के जो 15वें अध्याय है ना, उसको तुम बाय हार्ट कर डालो, बाय हार्ट कर डालो। गुरु की आज्ञा से सब ने 15वें चैप्टर और भगवत गीता को बाय हार्ट कर दिया। जब गुरु ने सबको पूछा, सबको बाय हार्ट हो गया? बोला हाँ जी, बाय हार्ट हो गया, बराबर हो गया। तो उन्होंने कहा सब आ जाओ, सब लाइन में लगे। सब ने उसको उच्चारण किया, बराबर उच्चारण किया। जिसने प्रश्न पूछा था भगवान नहीं खाते, उसे बोला तूने याद किया? हाँ किया। बोला तू कैसे याद कर सकता है? ये सारे के सारे श्लोक तो भी किताब में हैं और पूरे के पूरे हैं, तूने इसको याद कैसे कर लिया? जब ये पूरे के पूरे श्लोक यही गीता में हैं तो तू याद कहां से हो गए? तेरे दिल में कैसे उतर गया? बोला मैंने याद किया ना। बोला जब तू एक तुच्छ प्राणी इसको अपने शरीर में ले सकता है तो भगवान क्या भोग लगाए नहीं लेंगे? जो भगवान भोग लगाएंगे भोग क्यों नहीं लेंगे? तुम ले सकते हो तो, लेकिन भगवान नहीं ले सकते। मैं कर सकता हूं लेकिन भगवान नहीं कर सकते। बेचारे हैं भगवान, उनके हाथ नहीं है, चल नहीं सकते हैं, आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, वो कैसे करेंगे? तुम कर सकते हो। जिसको उसने बनाया वो नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, हम कभी अपनी बुद्धि के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां आज बता रहे हैं, धर्म बता रहे हैं, उनको मालूम है कि कली में क्या होने वाला है, कैसी कैसी चीजें होंगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने आपको शायद पहले बता दिया, दोबारा बता रहा हूं कि कली तो अभी आया नहीं है, तुमको कैसे मालूम? अब कली तो आया नहीं, तुमको कैसे मालूम? जैसे प्रभु जी ने कहा कि 40,000 बेड्स का जो है इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा, लोग तो आए नहीं है, इंतजाम क्यों कर रहे हैं? उनको मालूम है आएंगे। उन्होंने देखा है, बाहर से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, आगा होगा। तो इसी प्रकार अभी कलयुग नहीं आया है, लेकिन कलयुग की भविष्यवाणी हो चुकी है। किसी और दूसरे प्लैनेट में कलयुग चल रहा है, वहां क्या क्या हो रहा होगा उसकी प्रारूप यहां होगा। इसलिए कहते हैं ये करना चाहिए। तो इस कली में जो है संकीर्तन के अलावा नास्ति एव गतिरन्यथा। किसी का हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। कई बार अगर कोई आपको पूछे कि भाई भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। आज फॉर्मूला याद कीजिएगा। आपकी उम्र गुजर जाएगी, आप फिर भी भगवान के बारे में पूरा नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको एक मिनट में बताना तो बता दीजिएगा। उनको कहिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भगवान का विजिटिंग कार्ड है। क्या है? रूप क्या है? सच्चित आनंद रूपाय। उनका रूप क्या है? सच्चित आनंद वाला है। अच्छा, तो करते क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। जो विश्व है, विश्व का सर्जन करते हैं, प्राणियों को पालन करते हैं, ये उनका काम है। और उनकी इच्छा क्या है?
तापत्र विनाशाय। वो नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त, उनके अंग जो है ये त्रिपदा भौतिक जगत में परेशान है। और उस भगवान श्री कृष्ण को वयम नमः, हम सब नमस्कार करते हैं, सब नमस्कार करते हैं। तो बहुत आसान है भगवान को समझना, और उम्र गुजर जाए फिर भी नहीं समझ सकते हैं। दोबारा बोलता हूं, सचितानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम का मतलब है हम सब। कौन हम सब? जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, जिन्होंने सुना है, वो सब भगवान कृष्ण को नमन करते हैं। तो यहां धर्म को मालूम है क्या होने वाला है, स्त्रियों के साथ क्या होगा, पुरुष कैसे होंगे, सब चरित्रहीन होंगे। और हम सब लोग यही कहेंगे कि मेरे अलावा मैं चरित्रवान हूं, बाकी सब चरित्रहीन है। और हम किसी को कहते तो हमसे नाराज हो जाते हैं। हम कहते हैं हम जो हैं चरित्रहीन हैं, हम पापी हैं, तभी तो यहां आए हैं। अगर पापी ना होते, चरित्रहीन नहीं होते, तो हमें यहां नहीं आना पड़ता। यहां आने का मकसद यह है। और अब सुधार की आवश्यकता है। भूलना हमारी प्रकृति है, सुधारना हमारी प्रगति है। हम गलती कर जाते हैं, लेकिन उसकी भूल को सुधारना यही हमारी प्रगति है। और प्रगति ये नहीं है कि हमने मकान बना लिया, गाड़ियां खरीद कर ली, ये हो गया। नहीं नहीं, प्रगति है भूल को सुधारना। और क्या भूल? भगवान के विरह में भगवान से बिछुड़ चुके हैं, उसकी भूल को सुधारना ही प्रगति है इंसान की, मनुष्यता की। और कहते हैं कि क्या बिछो हो गया। देखिए कल हम जो श्लोक कह रहे थे ना, एतथि आतुर चित्तानाम, जितने चित्त हैं, जितने मन है, सब आतुर हैं। आतुर यानी पाने की इच्छा। क्या पाना है? किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अगर आप दोहा में हो, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास चले जाएं, वो कहेगा इफ यू वांट एंजॉय द लाइफ विजिट सिडनी, विजिट न्यूयॉर्क, विजिट जापान, टोक्यो, विजिट लंदन। अगर आपने वहां से टिकट ले ली, आप लंदन जाएं और फिर वही ट्रैवल एजेंसी में जाएं, वो बोलेंगे विजिट दोहा, एंजॉय लाइफ देयर। यानी आप जहां हैं वहां खुश नहीं है, दूसरी जगह खुश है। तो इसको कहते हैं मिराज, इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। वहां खुशी मिलेगी, वहां खुशी मिलेगी, वहां खुशी मिलेगी, वहां खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी कहां है? खुशी तो है ही नहीं ना। और खुशी है दिल के अंदर, खुशी है मन में, और खुशी है भगवान की सेवा में। हम सब कुछ करते हैं, हम सब खुशी रहना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं अपनाते हैं जिससे हमें खुशी मिले। अब बेचारे भगवान क्या करेंगे? भगवान ने तो सब कुछ दे दिया, इतना भी कह दिया यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात्। अब इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे भाई? एक छोटा सा नाम लेकर के जन्म संसार बंधनात्, जन्म संसार के बंधनों से छूट जाओगे। अब और क्या भगवान बोलेंगे? कह दिया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और भगवान क्या बोलेंगे? मनमया माम उपाश्रित, मेरी आश्रित आ जाओ, और भगवान क्या बोलेंगे? अगर भगवान अगर अपने पे आ जाए ना, तो हमें भगवान की माननी पड़ेगी। कल हमको अगर उन्होंने पेड़ बना दिया, पत्थर बना दिया, और चीज़ बना दी, पहाड़ बना दिया, तो आप क्या करेंगे? तब तक भगवान के आश्रय। लेकिन भगवान ने हमको जो है चल बनाया है, उसके ऊपर से बुद्धि विवेक दी है, और कहा है यथा इच्छे से तथा करो, कर्मणो अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, कर्मण से बोधव्यम, कर्मणा गहनो गति। तो धर्म को मालूम है, वो बता रहा है कि ये धरती माँ, क्या ये चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं? क्या किसी ने आपको धोखा दिया है? और अब सब लोगों को छोड़ो, हम खुद अपने आप को धोखा देते हैं। दूसरों की बात तो मान ली जाए, अपने आप को धोखा देते हैं। क्या धोखा देते हैं हमें मालूम है ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, और इस शरीर में हम जो है जन्म और मृत्यु की यात्रा को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन धोखे में रह जाते हैं। फिर कभी, फिर कभी। याद है चंदूलाल की कहानी? फिर कभी, फिर कभी, फिर कभी। और सबके साथ
आज करना है सो कल करेंगे, कल करना है परसों, हमें इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे जीना है बरसों। कल करेंगे ना, परसों करेंगे, अगले महीने करेंगे, अब कोई भाग थोड़ी जा रहा है। और भरोसा एक क्षण का नहीं, एक क्षण का नहीं भरोसा। लेकिन हम अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषा अस्तावरणाम इच्छन्ति कि आश्चर्यम परः। यही आश्चर्य है। सब जीव हिमालय चले गए। आपने देखा होगा अपने पैरों को नीचे, अपने कॉकरोचेस को, एंट्स को, पक्षियों को आपने मरते देखा होगा। वो भी उनमें अपने यूनिवर्सेस हैं। वो सब जितने भी शरीर हैं सब यूनिवर्सेस हैं। हमने जाते हुए देखा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ये पता नहीं हमारी धारणा कहां से आ गई। और भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मृति च। फॉर्मूला दे रहा हूं, समझ सकते समझ लो। तो सब चिंताग्रस्त हैं। एतति आतुर चिंता नाम, सब चिंता में है। आप देखते होंगे बच्चों का जीवन कितना बढ़िया जीवन है। जब बच्चा खेलता होता तो मम्मी बोलते चलो आ जाओ पढ़ाई करो। जब पढ़ाई करने बोले चलो सो जाओ। जब उसे अच्छी नींद आए उठो नहाओ। यानी अपनी तरह का बेचारा कुछ काम नहीं कर सकता। बोलते बचपन, बचपन, अरे कितनी मार पड़ी बचपन में। जो खाने को चाहा और देना, 2 लड्डू खाने थे, 3 खाने थे तो 1 ही मिला, कितना दुख होता। हम कहते हैं हमारा बचपन। अरे भाई, हमारी जिंदगी, आधी जिंदगी माँ बाप परेशान कर लेते हैं और बाकी की जिंदगी बच्चे। क्या जीवन है? आधा का जीवन माँ बाप ठोक बजा करके, और फिर उसी का हम क्या करते हैं। एक कथा सुना दूं। एक बार एक बच्चे को उसके पिता ने झापड़ मार दी, कस से झापड़ मार दी। बच्चा नहीं रोया। उन्होंने, पिताजी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? बोला हाँ पूछो। बोला जब आप गलती करते थे तो आपके पिताजी आपको मारते थे? बोला हाँ मारते थे, मुझे बहुत मार पड़ी है। बोला अच्छा। और बोले जब तुम्हारे पिताजी गलती करते होंगे तो उनके पिताजी मारते होंगे? बोला हाँ मारते थे। और बोले जब वो गलती कर उनके पिताजी मारते होंगे? बोला हाँ बोलते। तो क्यों पूछ रहा है? अरे पापा इसलिए पूछ रहा हूं, ये खानदानी गुंडागिर्दी कब तक चलेगी? ये गुंडागिर्दी हो गई। जब देखो जो मार रहा है, जब देखो जो मार रहा है, कोई बात है? तो आधा जीवन माँ बाप परेशान करते हैं और आधा जीवन हमारा बच्चे परेशान करते हैं। हमारे पास जीवन बचा ही कहाँ है? और जो ले दे के जीवन बचा, थोड़ा अखबार पढ़ लेते हैं, थोड़ा टेलीविजन देख लेते हैं, थोड़ा क्रिकेट देख लेते हैं। एक बार हम राधा गोविंद जी के मंदिर में थे वृंदावन में, और बगल में भक्त बैठे हुए थे और वो कान पे कमेंट सुन रहे, कमेंट लगा रहे थे। मंदिर बिल्कुल राधा गोविंद जी का मंदिर है ऊपर पहाड़ी पे, तो सुन रहे थे। तो बार बार बोले अरे अबे साले आउट हो गया, वो आउट हो गया। और हम सब मंदिर दर्शन कर रहे हैं और हम भी फिर बोल रहे मंदिर, बस बोले भैया भैया क्या स्कोर हो गया, क्या स्कोर हो गया? देखिए इतनी दूर से लोग जाते हैं वृंदावन के दर्शन करने और वृंदावन के मंदिर में खड़े हैं, बजाय भगवान पे ध्यान देने का पता चले कि क्या स्कोर हो गया। सच्ची बात बता रहा हूं मैं, मंदिरों की बात होती है। तो यानी क्या है, हम करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। बोलो कुछ, करो कुछ, सोचो कुछ, और इसमें सारे काम हो जाते हैं। लेकिन आज धर्म बता रहे हैं क्या ये चीजें तुम्हारे जीवन में हो रही हैं इसलिए तुम उदास हो। एतति आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्शे छया मुहु। और इस मोह से कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। भवसिंद पलवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णम। इस शोक को काटने का, इस चिंता को काटने का एक ही उपाय है हरिचर्यानुवर्णनम। भगवान हरि की लीलाओं का व्याख्यान किया जाए, व्याख्यान सुना जाए, तभी जाके चिंता दूर होगी। लेकिन चिंताएं दूर नहीं होती हैं, और सबके साथ ऐसा होता है। जो धैर्य नहीं है, जो धीर नहीं है, उनके साथ ऐसा होता है। और हमारे साथ 24 घंटे में कई बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये तरंगे ऊपर, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा आता रहता है। लेकिन
परसों प्रभु करते वो आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवशंति यद्वत्। हमें समुद्र की तरह शांत, जितना आ जाए जितना चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव भविष्यति। ओम शांति ही शांति शांति। जब ऐसा धारणा हो जाए, अब ऐसा धारणा कब होगी? जब हमें मालूम होगा मेरे साथ जो हो रहा है वो भगवान के द्वारा हो रहा है, तो हमें दुख किस चीज का? जब भगवान कर रहे हैं तो गलत तो नहीं करेंगे, गलत कर ही नहीं सकते। जब नरसिंह रूप में भगवान आए तो सारे देवी देवता, यहां तक ब्रह्मा जी तक डर गए, बिल्कुल डर गए, उसके नजदीक नहीं गए। तो सबने प्रहलाद को धकेला, तुम जाओ। और प्रहलाद को मालूम था इस खूंखार चेहरे के पीछे सच्चिदानंद रूपाया मेरा कृष्ण है। वो फौरन चले गए, उनको डर नहीं लगा। जबकि ब्रह्मा जी को डर लगा और देवताओं को डर लगा, थर थर कांप रहे थे। हिरण्यकशिपु की लाश पड़ी हुई है और वो विकराल रूप में है, और प्रहलाद आराम से जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाया, ये तो मेरे प्रभु हैं, इनसे क्या डर है? ये तो मेरे को बचाने वाले हैं, ये तो संसार को बचाने वाले हैं, संसार के माता पिता हैं, इनसे क्या डर? तो हम लोग जो हैं भयभीत इसलिए रहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। और जिस दिन हमको पता चलेगा कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, शरीर के साथ ऊंच नीच तो होगी नहीं, क्योंकि शरीर है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान तो होगा ही, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये कोई नई चीज नहीं है। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो होई, ये अनहोनी तो नहीं होने वाली है। जो होनी है तो उसमें क्या डर? तो जब भक्त को प्रभु जी कल एक श्लोक और बोले थे, कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानाम अभयंकर। भगवान कृष्ण ही ऐसे पुरुष हैं जो भक्तों के हृदय में अभय भर देते हैं, वरना सब भयभीत हैं। जीते जागते छोड़ो, सपने में भी आदमी परेशान रहता है। सपने में भी कभी शेर पीछे बढ़ जाता है, कभी अपनी गर्दन कट जाती है, कभी कुछ है कभी कुछ है। हाँ, ये आतुर चित्त हमारा है, ये कली का ही संसार है। जो भगवान के शरणांग चले जाएगा, हे प्रभु तुम ही मेरे रक्षक हो, जो चाहो। कल हम उस श्लोक कह रहे थे ना, हे प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदरसी है नाम तिहारो, चाहे तो प्यार करो। एक बार गुरु महाराज यहाँ थे, तो एक हमारी दोस्त थी, उनकी लड़की बीमार थी वैसे में। तो हमने महाराज से कहा, महाराज प्लीज़ कैन यू ब्लेस द चाइल्ड। गुरु महाराज ने जोर जोर से कहा भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण अगर आपकी इच्छा हो तो उसको आप ठीक कर दो, उसके भलाई में जो करना है प्रभु आप कर दो, उसकी भलाई में। ये नहीं कहा कि तुम करो। हम कहते हैं ना भगवान को हमारी सुननी पड़ेगी, हम ऑर्डर देते हैं। गुरु महाराज ने ऑर्डर नहीं दिया, हे प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो उसको ठीक कर दो। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछेगा, बोले हाँ प्रभु जी मेरी ब्लेसिंग्स है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा, हम भगवान को ऑर्डर देते हैं। लेकिन देखिए वैष्णव कहते अगर तुम्हारी इच्छा हो, अगर ये उसके हित में हो तो प्रभु कृपा करो। और प्रभु की कृपा तो हर बार ही है ना, चाहे इधर हो या उधर, जीवन हो या मृत्यु, भगवान की तो कृपा है। लेकिन समझ की बात है। तो यहाँ धर्म जो है बहुत परेशान है और कह रहा क्या तुम्हारे साथ ऐसी बात हुई होगी, या और कहा क्या या जो ब्राह्मण है संस्कृति का आदर नहीं करते। बहुत सारे ब्राह्मण हैं, आपने जिनको काला जादू आता है, वो आपको 1000-2000 रुपए लेकर के आप किसी को मंत्र पढ़ा कर किसी की मौत आप करा सकते हैं। यही आजकल ब्रह्म विद्या, किसी को नुकसान के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी को सारे कष्ट पहुंचाने के लिए, ये ब्राह्मण लोग पैसे लेकर के वो मंत्र पढ़ देते हैं। कभी मंत्र फलीभूत हो जाते हैं, कभी नहीं होते। लेकिन ये ब्राह्मण विद्या अब बिकती है, बिकती है। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थाय उपकल्पते। लेकिन धर्म तो समझने की है,
धर्म तो स्वीकार करने की चीज़ है, ये बेचने की चीज़ है। इसमें आजीविका थोड़ी चलाई जाती है। हाँ, अगर कोई दे तो बात दूसरी है। हम एक बार दिल्ली में गुरु महाराज से मिले, तो गुरु महाराज में ILB हॉस्पिटल में थे, तो किसी घर रुके ग्रीन पार्क में, तो हमको कैसे पता चला, हम भी दिल्ली में थे, हम भी गुरु महाराज के पहुंचने चले गए। तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तो हमारे एक असीदास प्रभु हैं, वो गुरु महाराज के पास गए। उन्होंने कहा, गुरु महाराज विजय माधव प्रभु हैं, आए रखे। गुरु महाराज कहाँ हैं? तो मैं गुरु महाराज के नज़दीक गया, दंडवत किया। गुरु महाराज ने मुझे क्या बोला? आई एम सॉरी, माई आई साइट इज नॉट गुड, आई कुडंट रिकग्नाइज यू। ही इज सेइंग आई एम सॉरी। Would you believe the humility of such a great personality? He's saying, I'm sorry, I couldn't recognize you because my eyesight has gone bad. और फिर छूटते बोला, देखिए कितना करुणा है उनके हृदय में। कहने लगे, सिडनी में युतिका है ना, वो कुछ परेशान है, अपने लड़के को बोल के कहना उसको जरा काउंसलिंग कर दे। 7,000-8,000 किलोमीटर दूर उस माता जी ने गुरु महाराज को लिखा होगा, मुझे परेशानी है, टेम्पल की कोई परेशानी होगी मैनेजमेंट की, तो मुझे बोलते हैं कि अपने बेटे को बोलना कि जरा उसका ख्याल रखें। देखो कितना, यानी कितना ख्याल करते हो हर आदमी का, हर व्यक्ति विशेष का। उनके पास हजारों चिट्ठियां दी होंगी, लेकिन मुझे कहते हैं अपने बेटे को बोल देना कि जरा उसका ख्याल रखें। और उसके बाद हम जब दोबारा गए वहाँ मिलने, तो हमने माता जी को कहा कि अब कैसे सब ठीक ठाक हैं? बोले प्रभु जी आपको एक कष्ट देना है। मैंने कहा बताइए। कि हमने गुरु महाराज के लिए घर बनाया है, प्लीज़ आप आए। मैंने कहा गुरु महाराज के लिए घर बनाया? बोला हाँ, गुरु महाराज के घर बना है। तो मैं और मेरी पत्नी और हमारी बहू हम उनके घर देखने गए। थोड़ा सिटी से करीब 50-60 किलोमीटर दूर था। तो जो घर उन्होंने बनाया, नीचे अपने लिए और ऊपर गुरु महाराज के लिए, एक कमरा गुरु महाराज के लिए और एक कमरा उसके सर्वेंट्स के लिए, उसके लिए उन्होंने स्पेशल लिफ्ट लगाई कि आइए आपको गुरु महाराज का कमरा दिखाते हैं। मैंने बोला ये गुरु महाराज के लिए, जब आएंगे ये गुरु महाराज का कमरा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए, बिकॉज ऑफ कोविड हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गई, महाराज परेशान हो गए मद्रास में, उसके लिए ट्रांसफर कर बैठे रहे। तो ये देखिए गुरु भक्ति, एक कमरा गुरु महाराज के लिए, बहुत बड़ा कमरा ऊपर मेजनीन फ्लोर में, लिफ्ट लगा, स्पेशल लिफ्ट लगा रखी। तो मैंने कहा लिफ्ट दे लेंगे? बोले नहीं, वो लिफ्ट तो गुरु महाराज जी ओपन करेंगे, आप सीढ़ी से चलते हैं। मैं कहा ठीक है। बोला ये लिफ्ट जो गुरु महाराज जी वो करेंगे, ओपन करेंगे। और फिर हमने गुरु महाराज कमरा देखा, वाह 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 वाह, क्या शानदार कमरा बनाया। तो ये होती है गुरु भक्ति। कुछ करना है, हम क्या करते हैं, बोलते ज्यादा करते कम है। तो जो वैष्णव होता है ना, बहुत करुणा है उसके अंदर। यहां देखिए धर्म को कितनी करुणा है धरती के प्रति। ये क्यों परेशान होगी, क्या वजह हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर दुखी। तो जब तक गुरु भक्ति नहीं होगी, भगवान मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? जैसे हम किसी प्रेसिडेंट को आते जाते देखते हैं। कभी कोई प्रेसिडेंट आ गया या कोई क्रिकेटर आ गया दूर से, अरे मैंने देख लिया, आपने देखा, उसने थोड़ी देखा। तो कभी कभी हम भगवान को ऐसे देख सकते हैं, सामीप्य में जाके नहीं देख सकते हैं। हमें सारिष्टि मिल सकती है, सारूप्य में मिल सकता है, लेकिन साम्य पे मिलना बहुत मुश्किल चीज है। तो ये सब गुरु भक्ति के कारण। तो यहां देखिए धर्म कितना परेशान है उनके लिए कि क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है। अब गुरु भक्ति की एक बात मैं आपको और बताऊं, बड़ी हैरान करने वाली बात है। कभी कभी मैं इन चीज़ों को सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार 1988 में मैं जगन्नाथपुरी गया, अकेला था, बच्चे तो छोटे छोटे थे, कमाई कम थी, तो बोला मैं घूम के आता हूँ, तुम भाई यहीं बैठो। तो जगन्नाथपुरी गया, वहाँ से मैंने जगन्नाथपुरी से मैं आ गया भुवनेश्वर, 10-11 बजे भुवनेश्वर आ गया। और मैंने भुवनेश्वर से रात की जो है राजधानी एक्सप्रेस बुक कराई, जो रात को 10 बजे चलती थी।
तो मैंने कहा 11-12 बजे मंदिर जाऊंगा, वहाँ थोड़े से जैन मंदिर है वो देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो मैं करीब 1:30-2 बजे जब मैं जो भुवनेश्वर मंदिर में पहुंचा तो गेट पे गौर गोविंद स्वामी रॉकिंग चेयर में रॉक कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम है गौर गोविंद स्वामी, मुझे नहीं मालूम, मैंने इनके बारे में बहुत कम सुना था, बहुत कम सुना था। तो गौर गोविंद स्वामी थे, तो आदत से हमने दंडवत प्रणाम किया। तो मुझसे पूछा कहाँ से हो? मैंने कहा महाराज मैं तो मंदिर के दर्शन करने आया हूँ, जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए, मंदिर के दर्शन किए, रात को ट्रेन है, मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने फौरन अपने 2 भक्तों को बुलाया, इधर आओ। वो आए, प्रणाम किया, बोले देखिए इनके रात की 10 की ट्रेन है, तब तक तुम इनके साथ रहो, इनकी खातिरदारी करो। मैं इतना बोल करके बोले शाम की आरती आ जाना। गौर गोविंद स्वामी ने बोले शाम की आरती आ जाना। मैं कहा ठीक, 1-2 बजे थे। तो उन्होंने मुझे नहीं मालूम, मुझे कमरा दे दिया, फर्स्ट क्लास कमरा मिल गया मेरे को, कमरा मिल गया। मैं नहाया, मैं जैसे लेटा था, 1 करीब 2, 2:30, 3 बजे होंगे, दरवाजे पर खटखट आवाज आई। मैंने कहा कौन होगा? खोला, वहां जो है महाप्रसाद का थाल। मैंने कहा प्रभु वो जो थे ना गेट पे कौन थे? बोला तुम्हें नहीं मालूम? गौर गोविंद स्वामी। मैंने कहा ओ तेरे की, गौर गोविंद स्वामी थे? मुझे मालूम नहीं था गौर गोविंद स्वामी थे। तो प्रसाद का थाल मिला, प्रसाद को ग्रहण किया, सो गए। शाम की आरती 6:30 की आरती थी, आरती हुई तो वो मेरे पीछे पीछे लड़ गया। मैंने कहा भैया मैं चले? बोले नहीं, गुरु महाराज ने कहा तुमको छोड़ के आना है। अरे मैंने कहा मैं चले? बोले नहीं नहीं, गुरु महाराज की आज्ञा भाई, ऐसा थोड़ी होता। तो साहब वो मेरे पीछे, शाम का खाना, ट्रेन के लिए खाना पैक किया। 9 बजे हम टेम्पल से निकले, टेम्पल की गाड़ी थी, टेम्पल की गाड़ी लेकर जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन लगी हुई थी, मैं अपनी सीट पे बैठा। मैंने बोला दंडवत प्रणाम प्रभु जी आप जाइए। बोले नहीं, गुरु महाराज ने कहा है जब तक ट्रेन ना चले जाए तुम खड़े रहना। बाप रे बाप। फिर बातें करते रहे, फिर उनसे महाराज की कथाएं सुनी, कुछ हमने भी कथाएं बोली अपने गुरु महाराज की। तो जब तक मेरी ट्रेन नहीं चली तब तक वो बंदे वहीं खड़े रहे। देखिए गुरु की आज्ञा, अगर वो बोलते हमने छोड़ दिया तो गुरु क्या करते? गुरु देख थोड़ी रहे थे। लेकिन देखो कैसी धारणा है कि गुरु ने बोला कि उनको छोड़ के आना, खाना का प्रबंध, ये प्रबंध, वो प्रबंध, ट्रेन तक का प्रबंध, गाड़ी उनकी सब उनकी। तो ये है गुरु भक्ति। तो भगवान कृष्ण खुश क्यों नहीं होंगे? हम भक्त पराधीनो नहीं स्वतंत्र एवं द्विज। भगवान कहते मैं तो परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के आधीन हूं। तो अगर हम इस प्रकार एक दूसरे की सेवा करें, जाने, हम बताओ क्या करते हैं हम लोग, शायद आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, वी डू नॉट अप्रिशिएट अदर पीपल, वी लैक अप्रिशिएशन। और अगर किसी बच्चे ने छोटा काम भी कर दिया ना, वी इवन डोंट से थैंक यू, वी डोंट अप्रिशिएट। क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया, क्या हो गया? वी डोंट अप्रिशिएट, वी लैक अप्रिशिएशन। और जब हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हमको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। अप्रिशिएशन नॉट फॉर द बॉडी बट द परमात्मा रिजाइडिंग विद इन द हार्ट। और तब जाके जो है ना जीवन का आनंद आता है। तो गुरु की सेवा, कृष्ण की सेवा। और तब देखिए भक्ति क्या है, धरती क्या है, ये भक्ति जो है गुरु की सेवा करती है। तो गुरु की सेवा, अब धर्म के द्वारा उसकी सेवा होगी, उसको सांत्वना मिलेगी। क्या करना है, कैसे करना है, क्या इसका उपाय है, शांत मन कैसा रहे, प्रशांति मना में एनम। प्रशांत मन जब तक नहीं होगा तो शांति कहां से मिलेगी? तो धर्म ये हमें सिखाता है कम से कम शांत रहो। जो हो रहा है वो भगवान की ही कृपा है। चाहे मेरे कर्मों का फल हो तो भगवान की कृपा, मेरे कर्मों का फल हो तो भी भगवान की कृपा। और जब हमारा क्या बोलते हैं भावना बन जाए, बहुत शानदार श्लोक है, हिंदी का श्लोक है, श्लोक मैं भूल रहा हूँ अभी, तो तब जाके आनंद आता है। खुश रहना हमारे हाथ में है, तो हमें खुश रहना है। भगवान ने हमें समय दिया है, साधन दिया है, हमें हमारे गुरुजन दिए हैं, हमारे गुरु भाई दिए हैं,
हमें मनुष्य और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या। और भगवान ने कहा शांति नहीं। क्या हुआ कि एक बार भगवान जी जो है पोर्टफोलियो विचरण कर रहे थे, तो किसी को धन दिया, किसी को दौलत दी, किसी को विद्या दी, किसी को ये दिया, किसी को वो दिया, किसी को दिया। एक पर्ची में शांति लिखी थी, भगवान के पैरों में गिर गई। तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु प्रभु वो पर्ची एक गिर गई है, वो नहीं दी आपने किसी को। बोलो इसको पाने के लिए उनको मेरे चरणों में आना पड़ेगा भाई। जो पर्ची गिर गई बेचारी शांति की, वो शांति को पाने के लिए मेरे चरणों में आना पड़ेगा, तो मैं नहीं दूंगा। ये तो तुम्हें उपार्जित करना होगा, ये तुमको अक्वायर करना होगा। तो हम शांत रह सकते हैं, हम शांत रहना चाहें भगवान की याद में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम आनंद से जीवन गुजार सकते हैं। तो धर्म भी आए हैं हमारी सहायता करने के लिए। आइए मुझसे कुछ सीखें, हम भी शरणागत हो जाएं भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्तों की, और तब जाके जीवन में आनंद है। इसके साथ ही वाणी को मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू, टू स्पीक समथिंग विच आई कुड रिमेंबर। हरे कृष्णा।